So hello everyone and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the session of Indian Polity. So guys, in previous session we have discussed the types of bills which are introduced in the parliament and what are the procedures to pass those bills. In today's session we are going to discuss three topics from the parliament. Number one is the system of elections to the Lok Sabha, जो कि बहुत easy topic है. I believe हम सबको उसके बारे में एक basic जानकारी होगी. Number two, we will discuss about the leaders in the house in Lok Sabha and Rajya Sabha, and then we will talk about the whip. And after today's class, the parliament chapter will be over. ठीक है, तो पार्लियामेंट की आज आखिरी क्लास है. आई होप आपको पार्लियामेंट के बारे में जितने भी प्रोविजंस थे वो अब तक क्लियर है, एंड जो आज छोटे छोटे तीन प्रोविजंस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे. ऑलराइट, so let's begin with the session and let's talk about the system of elections to Lok Sabha. Now first of all, how is the seats allocated to a seats? जैसे हमें पता है उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट्स हैं, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट्स हैं. तो how these seats are allocated? So remember, each state is allocated a seat in proportion to their population first. ठीक है, in proportion to their population seats allocate की जाती है, and the ratio of number of seats and population is same for all states. ठीक है, let's say कि दिल्ली का पॉपुलेशन का और नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो अगर 2:1 है तो इट विल बी सेम फॉर ऑल द स्टेट्स एंड ऑल द यूटीज. ऑलराइट, so each state is allocated a seat in the proportion of their population, and the ratio of number of seats and population is same for all the states. But remember, this criteria is not applicable in those states which have less than 6 million population. ये वाला क्राइटेरिया वहां पे एप्लीकेबल नहीं है जहां पे पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है. And also number two, this is the very first point. Point number two that you should remember is that the ratio between the population of each constituency, the ratio between the population of each constituency within a state and the number of seats allotted to it is also should be the same for the entire state. एक स्टेट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन और उसमें जितनी सीट्स है उसका जो रेशियो है वो सभी कंस्टिट्यूएंसी के लिए क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए. सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज. आई होप दिस इज क्लियर. Moving ahead to the delimitation commission. Now what is this? So remember, the parliament is empowered to allocate seats in the Lok Sabha. सीट जो लोकसभा में सीट्स एलोकेट होती हैं जो भी हमने पढ़ा विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन, इसकी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. नाउ पार्लियामेंट के पास वो पावर कहां से आती है? कॉन्स्टिट्यूशन से आती है क्या? नहीं. सो ये जो पार्लियामेंट के पास पावर है ये आती है रूल्स एंड प्रोसीजर से. ठीक है, रूल्स ऑफ द हाउस से, एंड अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट है वो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट्स इनैक्ट करते रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम. सबसे पहला हुआ था इन द ईयर 1952, देन 62, 72 एंड फाइनली इन द ईयर 2002. So the parliament is empowered to allocate seats in Lok Sabha and division of each state into constituencies, and accordingly parliament has enacted 4 delimitation commission acts till now. First in 1952, 62, 72 and the final one is in 2002. Now these delimitation commission acts, under these delimitation commission acts delimitation commission is formed. इसके अंदर क्या होता है? delimitation commission बनाया जाता है, and that delimitation commission के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू डिसाइड टू एलोकेट द सीट्स ऑफ द लोकसभा एंड डिवीजन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ईच स्टेट. ऑलराइट, एंड जो आखिरी वाला था डिलिमिटेशन कमीशन, दैट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2002 थ्रू 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001. एंड रिमेंबर 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 से फ्रीज कर दी गई थी एलोकेशन ऑफ सीट्स टिल द ईयर 2026. यानी 2002 के बाद से, 2001 के बाद से, जो 2001 का अमेंडमेंट था उसके बाद से डिक्लेयर कर दिया गया था कि 2026 तक कोई भी चेंजेस इन द सीट्स नहीं होगा इन द लोकसभा. ऑलराइट, सो इट फ्रोज द एलोकेशन ऑफ सीट्स टिल द ईयर 2026. एंड रिमेंबर, with the 87th amendment act of 2003 it provided for the delimitation of constituencies on the basis of 2001 census. Before this it was 1991 census. Through this amendment, 84th amendment से ये डिसाइड हुआ था, it was decided that the delimitation will be done on the basis of 1991 census. But after that, the very next year in the year 2003, this new amendment act, 87th amendment act was enacted, and it was decided that the delimitation will be done on the basis of 2001 census. So
2026 में जो डिलिमिटेशन होगा वो 2001 के सेंसस के हिसाब से होगा, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू द सिस्टम ऑफ वोटिंग। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमारे देश में चलता है, जिसके पास मेजोरिटी आ जाएगी वो जीत जाएगा। अंडर दिस सिस्टम व्हाट हैपेंस इज दैट any candidate who secures majority of votes is declared elected, and of course we all know that every citizen who is 18 or more can vote, ठीक है। and under the system all the sections of the people get representation in proportion to their number। जैसे कि हम सब जानते हैं SC STs को हमारे देश में रिजर्वेशन दी हुई है इवन इन दी लोकसभा। ऑलराइट, सो रिमेंबर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है। इफ एनीवन आस्क यू दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस टर्म, so the exact meaning of this term is that any person, any candidate who secures majority of votes is declared elected। ये होता है मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का, ठीक है। now moving ahead to the leaders in parliament, so we all know there are two types of leaders in both the houses, leader of the house and leader of opposition। and of course जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस समय नहीं था। so leader of opposition is not mentioned in the constitution, it is not mentioned in the constitution of India, it is mentioned in the rules of the house, ठीक है। and for the very first time in the year 1969 Mr. Ram Subhag Singh was appointed as the leader of opposition, and he is from the Congress O। जब कांग्रेस स्प्लिट हो चुकी थी तो एक कांग्रेस O बनी थी, ये उस पार्टी के मेजॉरिटी लीडर थे। सबसे पहली बार 1969 में इन्हीं को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया था, ठीक है। तो अगर हम पहले लीडर ऑफ हाउस की बात करें, सो इन द लोकसभा प्राइम मिनिस्टर, if prime minister is the member of Lok Sabha, then he is the leader of house, and if he is not the member of Lok Sabha, then any person nominated by the prime minister is the leader of Lok Sabha। in case of Rajya Sabha, if there is the prime minister, then again prime minister will be the leader of house, but if not, then any minister who is a member of Rajya Sabha nominated by the prime minister will be the leader of Rajya Sabha, ठीक है। now can you tell me who is the current leader of Rajya Sabha? Please write down in the comments। and talking about leader of opposition, so as I told you, it is not mentioned in the constitution, and for the very first time in the year 1969 this handsome was made the leader of opposition from the party Congress O। and remember there is a condition for becoming leader of opposition, and it is that leader of opposition is from the largest opposition party having not less than 1/10 seats of the total strength of the house। मतलब in the case of Lok Sabha there should be at least 55 seats to become 55 सीट्स कम से कम होनी चाहिए किसी भी पार्टी के पास अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन की सीट चाहिए तो। एंड 2016 में भी हम जानते हैं कांग्रेस वाज लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी विद टोटल सीट्स 44। इन 2019 इवन दे डिड नॉट सिक्योर दी 1/10 ऑफ द सीट्स। 2019 में इनके पास कितनी सीट्स हैं? 52 सीट्स हैं। तो पिछले दो लोकसभा से ऑफिशियली देयर इज नो लीडर ऑफ ऑपोजिशन। हाउएवर क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जैसा हमने पढ़ा था कि इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीसी, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस कमेटी के मेंबर होते हैं। तो इसलिए जो बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी की, उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफिशियली तो नहीं बन पा रहे हैं, बट यस कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी जो अभी हैं उनको हम उस रोल में देखेंगे, ठीक है। So, and remember the leader of opposition enjoys the rank of a cabinet minister। now moving ahead to the whip। now what is this whip? remember this term is derived from the British parliamentary procedure। ये British parliamentary procedure से term derive हुआ है। and whip का मतलब बहुत आसान है, आप सबने सुना होगा जब भी पार्लियामेंट में किसी बड़ी चीज को लेके वोटिंग होती है तो आपने न्यूज चैनल्स में सुना होगा दैट दिस पार्टी और दैट पार्टी हैज उन्होंने एक whip जारी कर दिया है। Now whip जारी करने का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। First of all, remember it is neither mentioned in constitution nor in the rules of house nor in any parliamentary statute। किसी parliamentary statute में भी ये mention नहीं है ये वाला term whip। Every political party, remember, has its own whip in the parliament who acts as an assistant floor leader। हर political party का एक whip होता है जो कि वहां पे floor leader का काम करता है। Now इसका काम क्या होता है? He is charged with ensuring the attendance of his party members। ठीक है, whip का काम है कि वो attendance ensure करेगा अपने party members का
कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स आए और वोट करें किसी भी पर्टिकुलर मैटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नाउ रिमेंबर यहाँ पे एक चीज याद रखना, देयर आर सम केसेस लाइक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वेयर व्हिप्स कैन नॉट डायरेक्ट एन एमपी और एमएलए ऑन होम टू वोट, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पे या एमएलए के ऊपर प्रेशर नहीं किया जा सकता कि आपको किसी पर्सन को वोट करना है, ऑल्दो होता वही है, पार्टी के लोग अपनी पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाते हैं। Now there are three types of whip. First of all, it is the one line whip. It is to inform the members about a vote. सिर्फ inform करना to the members about a vote. मतलब in this case, in the case of one line whip, it allows a member to abstain if he decides not to follow the party line. But ऐसा होता नहीं है, पार्टी लाइन में उनको रहना ही पड़ता है, अदरवाइज उनको पार्टी से हटा दिया जाएगा, और अगर पार्टी से हट गए तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं रहेंगे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ हम पढ़ेंगे बहुत सारी डिटेल्स में, जो बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है जनरली एंटी डिफेक्शन लॉ में, वो सारी क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। नंबर 2, द टू लाइन व्हिप, इट इज टू डायरेक्ट मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन द हाउस। मेंबर्स को डायरेक्ट किया जाता है कि आपको हाउस में प्रेजेंट रहना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ वोटिंग, बट यहाँ पे भी कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती विद रिस्पेक्ट टू वोटिंग कि आपको वोटिंग करनी ही करनी है, आप पार्टी लाइन से नहीं बाहर जा सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। बट इन द थ्री लाइन व्हिप, इट इज इश्यूड टू मेंबर्स डायरेक्टिंग देम टू वोट एज पर द पार्टी लाइन, मतलब जो पार्टी ने कहा है आपको उसी के हिसाब से वोट करना पड़ेगा। एंड जनरली यही वाला होता है, थ्री लाइन व्हिप ही हर पार्टी जारी करती है, बिकॉज पार्टीज रिस्क नहीं ले सकती कि भाई अगर जैसा भी किसान बिल था, तो अगर मान लो कि बीजेपी ने व्हिप जारी ना किया होता और उनको मेजोरिटी ना मिलती तो क्या होता है, यू कैन ऑल्सो नो। सो वन लाइन व्हिप में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है कि भाई वोट करना है, बट यहाँ पे एब्सटेन कर सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए। टू लाइन व्हिप में ये बताया जाता है कि आपको इस वोटिंग के टाइम पे रहना पड़ेगा, बट विद रिस्पेक्ट टू द वोटिंग कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं होता। लेकिन थ्री लाइन व्हिप में ये बिल्कुल बताया होता है मेंबर्स को कि आपको पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाके वोट नहीं करना है। और अगर कोई मेंबर व्हिप फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, अगर कोई मेंबर व्हिप फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, वो जानने के लिए आपको देखना होगा एंटी डिफेक्शन लॉ का वीडियो, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज ऑन वेडनेसडे, ठीक है। तो ये था व्हिप। सो गाइस दैट्स इट, आज का सेशन छोटा सा ही रखेंगे क्योंकि पार्लियामेंट खत्म हो गया है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बजट वाली चीजें जो पार्लियामेंट के चैप्टर में ही मेंशन है लक्ष्मीकांत में, वो हम बजट हम अलग से पढ़ेंगे। अभी टाइम है, बजट आने ही वाला है फरवरी में, और हमारे एग्जाम में भी टाइम है, तो फरवरी में जब बजट आएगा उसके आसपास ही मैं बजट का सेशन कंडक्ट करूंगा अलॉन्ग विद दी जो इस साल का बजट होगा वो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑन वेडनेसडे। नेक्स्ट सेशन में क्लास होगी एंटी डिफेक्शन लॉ की, तो जितनी भी कंफ्यूजन है वो सारी दूर कर लेना आगे। एंटी डिफेक्शन लॉ, द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।